Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna। नाम अनुसार ये भारत वर्षर नामकरण करा जायछि। प्रथम ये भारत वर्षर नाम थला अजनाभ वर्ष, किंतु जेतेबेले भरत महाराज ये अजनाभ वर्षर सम्राट हेले, तांकर स्नेहशील भाव प्रजा मान प्रति एवं सुंदर भाव रे राज्य शासन, जहाद्वारा ये अजनाभ वर्षर नाम परिवर्तित है से महाराज भरतंग नाम रे भारत वर्ष नाम रे परिगणित है। सेतेबेले भारत वर्ष कहले केवल आजिकाली ये छोट भारत भूखंड को बुझाऊ नथिला। भारत वर्ष कहले ये समग्र पृथ्वी को बुझाउथला। तेणु भारत वर्षर जे सम्राट रहउथिले से समग्र पृथ्वीर सम्राट थिले। तांक अधीन रे अनेक राजा माने राज्य शासन करुथिले, किंतु सम्राट से समग्र भारत वर्षर शासक थिले। तेणु भरत महाराज से थिले महाराज ऋषभदेवंकर पुत्र। महाराज ऋषभदेव से थिले स्वयं भगवान, भगवान अवतार। तेणु ऋषभदेव जो 100 पुत्र थिले, ता मध्य भरत थिले ज्येष्ठ पुत्र एवं ऋषभदेवंकर अन्य 9 जन पुत्र से माने क्षत्रिय धर्म आचरण करथिले। आउ 9 जन जोगेंद्र भाव रे, नव जोगेंद्र भाव रे परिगणित होते। आउ 81 जन से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो ब्राह्मणर कार्य करुले। तेणु एथुर जना जाउछि जे महाराज ऋषभदेवंकर पुत्र, जदिव महाराज ऋषभदेव से भगवान अवतार थिले, किंतु क्षत्रिय कुल आविर्भूत होते। तेणु जपरी आजिकल कहुच्छी जे जने ब्राह्मणर संतान ब्राह्मण हम, बा क्षत्रियर संतान क्षत्रिय हम, बा वैश्यर संतान वैश्य हम, किंतु भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग। मु 4 वर्ण सृष्टि करिछि, भगवान सृष्टि करिसंती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण एवं कर्म अनुसार भगवान को कहते जन्म कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग। तार अर्थ जार जेपरी गुण से जो कूल जात हो पछे, किंतु जार जेपरी गुण एवं कर्म से अनुसार से सही वर्ण पदवाच्य हो। जने यदि ब्राह्मण कूल जन्म ही ता निकटरे शूद्रर गुण रही, आ शूद्रर कर्म करुछि, ताहले से शूद्र पदवाच्य। जेपरी आम देखा क्षत्रिय कूल उत्पन्न है भगवान ऋषभदेवंकर संतान रूप में 81 जन पुत्र तांकर ब्राह्मणर गुण रही, तेणु से ब्राह्मण पदवाच्य है। एवं अन्य जो 10 जन थिले
9 ଜଣ ତ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ଯଦିଓ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ପରମହଂସ। ଏବଂ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଭରତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଋଷଭଦେବ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର, ସେତେବେଳେ ଅଜନାଭ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଅଜନାଭ ବର୍ଷର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ସେ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଭଗବାନ, ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାରାଜ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଅତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ଯେ ଶାସକ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଶାସକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶାସକ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଏବଂ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଭାବ ରହିବ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶାସକ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସେ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ପିତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁତ୍ରମାନେ ଯଦି ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ବା ଭର୍ତ୍ସନା କରି ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ପୁତ୍ର ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପିତା ନୀରବରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେନି ପିତା ପୁତ୍ରର ବିପଥଗାମୀ ଆଚରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାସକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କେହି କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଜା ଏକଥା ଦେଖିବେ ଏବଂ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ କରେଇବେ, ଇଏ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିତାମାତା ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କିଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत जह समुपयेत मृत्यु। से पिता हवा उचित नुहे बा जननी हवा उचित नुहे, माता हवा उचित नुहे। गुरु न सस्यात्, से गुरु हवा मध्य उचित नुहे जदि से शिष्य को बा पिता माता निजर पुत्र कन्या मान को मृत्यु कबल उद्धार करी न पारले। कारण ये हूँ मृत्यु लोक एवं समस्त जात ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य जार संसार जन्म है तार मृत्यु सुनिश्चित, जार मृत्यु हो तार जन्म मध्य सुनिश्चित। तेणु पिता माता बा गुरुंकर कर्तव्य होची तांकर अधीनस्थ मान को से मृत्यु कबल रक्षा करें। से से तार उपाय निजे जानी आवश्यक एवं तांकर संतान मान को से पथरे परिचालित करने आवश्यक। ठीक सेहीपरि राजार मध्य कर्तव्य जे प्रजा मान को भगवत उन्मुखी करे। किंतु राजा यदि नास्तिक हुए ताले से केबे प्रजा मान को भगवत उन्मुखी करि परिबो। सेथिबाई राजा मान को तांकर योग्यता अनुसार से मानकु राजगादी रे अभिषिक्त करा जाउथला। आजिकल जेपरि हमर भोट व्यवस्था रही, ए भोट व्यवस्था द्वारा से माने निर्वाचित हो नथिले। कारण आजिकल आम देखुचे भोट व्यवस्था द्वारा से योग्य अयोग्य जहाँ पाखे धन रहा से निर्वाचित है, से शासन कर देश। जे जानी निजे तार सी किपरि मृत्यु कबल उद्धार पाइब, से अन्य मान को किपरि परिचालित कर पार। सेथिपाई शासक मान को बछा जाउथला तांकर योग्यता देखि। तेणु जे राजा से देखिए तांकर पुत्र यदि योग्य ताहले से ताकू राजगादी अभिषिक्त करुथले, ता नहले से निज पुत्र को मध्य बहिष्कार करुथले। तेणु ये थिला भगवान कर शासन पद्धति। राजा माने जो माने राजर्षि धार्मिक से माने भगवान कर नीति नियम अनुसार राज्य शासन करुथले, जहाँ फल प्रजा माने भगवत उन्मुखी है संसार मृत्यु कबल से माने मुक्त हो पारुथले। और राजांकर सुशासन रे प्रजा माने सुखी हो पारिबे, राजांकर कुशासन रे प्रजा माने दुखी हेबे, स्वाभाविक कथा। तेणु पूर्व काल रे जदि वर्षा नहेला ठीक समय रे, जदि दुर्भिक्ष पड़िला, सेतेबेले राजा को दोष दिया जाउथला। जेपरि आमे जानिचे महाराज रोमपद तांका राज्य रे बहु वर्ष धरी वर्षा हला। तेणु राजा निजको दोषी माने करुथले सेथिबे जे मोर कौन सी पाप कर्म हेतु मो राज्य रे इंद्र वृष्टि करू नाहंती, मोर प्रजा माने दुखी। तेणु ये राजांकर राजा यदि धर्मपथर रही तांकर राज्य रे ठीक समय रे वर्षा आसीबो, ठीक समय रे ऋतु माने परिचालित हेबे एवं प्रजा माने सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करि परिबे। तेणु भरत महाराज एपरि एक सुशासक थिले जहाँ का राज्य रे केही दुखी नथिले, समस्त आनंद रे कालातिपात करुथले। तेणु से भरत महाराज धर्म अनुसार राज्य शासन करने सहित विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान मान से करुथले। जेपरि विभिन्न प्रकार यज्ञ अनुष्ठान रही, अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्या, ये सब यज्ञ अनुष्ठान मान से आचरण करुथले।
ଏବଂ এই ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି এই ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା। ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ। ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଭରତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ କରାଯାଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ର ବା ବାହୁ ପ୍ରତି ଏ ଆହୁତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଏଇ କର୍ମ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପଶୁ ବଳିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ପଶୁ ବଳିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଦରେ କୌଣସି ପଶୁ ବଳିର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପଶୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ପଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃଦ୍ଧ ପଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦିଆଯିବ ଯଜ୍ଞରେ, ସେ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ବାହାରି ଆସିବ। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବେଦରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଲାଭପ୍ରଦ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳିଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହେବ, ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ এই ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବମ ଏସବୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଅବତାରଣା ବା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯଜ୍ଞଟି କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧସ। ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ, ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନା କରାଯାଇଛି।
कारण आमको कौन शुद्ध द्रव्य प्राप्त होनी ता सहित उपयुक्त ब्राह्मण नहांती यज्ञ अनुष्ठान करने से जिते सब यज्ञ होउची कलिजुगे तार किसी फल प्राप्त होनी। प्राचीन काल रे जितेबाला यज्ञ अनुष्ठान होता देवता माने आसी यज्ञ रे यज्ञ भाग ग्रहण करुले। अनेक समय भगवान मध्य स्वयं प्रकट होते यज्ञ स्थल रे साधारण लोक माने दर्शन कर पारुथिले किंतु कलिजुगे ता संभव न जेहेतु यज्ञ अनुष्ठान ठीक भाव में संपादित हो पार। तबे भरत महाराज से भली यज्ञ मान अनुष्ठान करी यज्ञर फल को से भगवान के चरण रे निवेदन करथुले। एपरि भाव में भरत महाराज से तांकर राज्य शासन करी से प्रजा मान को सुखी करने सहित से 1000 नियुत वर्ष पर्यंत से राज्य शासन कले एवं तापरे से राज्य शासन मुक्त ही भगवान कर आराधना करने ପାଇଁ स्थिर कले। भरत महाराज 5टी पुत्र थिले। तांकर स्त्रींकर नाम था पंचजनी जे विश्वरूपंकर कन्या एवं तांकर 5टी पुत्र थिले। हाँ तांकर नाम सब होची सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु। तेणु महाराज भरत यहपरि भाव में जिते भगवत उद्देश्य रे भगवान को प्रसन्न करने उद्देश्य रे यज्ञ अनुष्ठान आदि संपन्न कले तेणु धीरे धीरे तांकर हृदय शुद्ध होवाई लगिला एवं यहपरि भाव में से भगवान के प्रति तांकर भक्ति धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त है। तेणु भक्ति वृद्धि प्राप्त हवा द्वारा हृदय शुद्ध हवा द्वारा जो भौतिक आसक्ति रही थाए मनुष्य भौतिक संसार रे भौतिक आसक्ति रहिबा स्वाभाविक किंतु भरत महाराज से भौतिक आसक्ति लुप्त है। साधारणतः आम देखू जो लोक माने से माने घर संसार परिवार प्रति एते आसक्त जे से माने भगवान के प्रति उन्मुख ही पारंती भगवान कर प्रति निजको समर्पण करवा ए कार्य से मन के द्वारा संभवपर ही पारे नहीं कारण से माने गृह संसार प्रति आसक्त किंतु भरत महाराज जदियो परिवार मध्य थिले राज्य शासन करुथिले किंतु तांकर हृदय एपरि भाव में शुद्ध है भगवान कर भक्ति द्वारा जे तांकर जो भौतिक आसक्ति परिवार प्रति स्त्री प्रति पुत्र कन्या मान के प्रति राज्य प्रति राज ऐश्वर्य प्रति ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जहाँ को दुस्तेज्य बोली कहा जे धन को त्याग करिबा स्त्री को त्याग करिबा पुत्र कन्या मान को त्याग करिबा एवं सांसारिक सुख को त्याग करिबा ये दुस्तेज्य बहुत कठिन किंतु भरत महाराज जहौ जुबेव मलबद उत्तम श्लोक लालस जे युवावस्था रे भरत महाराज ये सब को मलबद त्याग कर दे
ଯେପରି ଆମେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ଆମ ମଳ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭରତ ମହାରାଜ ଏ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ରାଜ ସୁଖ ଏସବୁକୁ ମଳବତ ତ୍ୟାଗ କର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ। କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ? ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତି କଠିନ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲାଳସ। ଯେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ତୁତି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଅତି ଦୁସ୍ତେଜ ଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ଆଦି ଏସବୁକୁ ସେ ମଳବତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜଗାଦୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଭରତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପୁଲହ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ତାର ଜୀବନର 100 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ରହିଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ। ତେଣୁ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭରତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କାରଣ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଭଗବତ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। ତୀର୍ଥର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଯାଇ କୌଣସି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ତୀର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ
जदि आम तीर्थ स्थान को जाई नदी रे स्नान करवा ठीक अच्छे किंतु ता सहित जो माने भगवान कर परम भक्त साधु तांक मुखर भगवान कर कथा श्रवण करवा आवश्यक ताहले आमर तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो। तेणु भारत महाराज जपरी आम देखु परीक्षित महाराज मध्य जीवन अंतिम समय से गंगा नदी तटर आश्रय ग्रहण करथिले एवं गंगा नदी तटरे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 7 दिन धरी भागवतर कथा श्रवण करे जहा फल आज आम से श्रीमद भागवतर कथा श्रवण करिवार सुजोग लाभ करि पारुछे। तेणु भरत महाराज से निश्चित कले जे पुल आश्रम सेठारे जाई से भगवत आराधना करिबे। पुल आश्रम जहाँ बर्तमान नेपाल रही सेतेबेले सब गोटे राष्ट्र थिला तेणु पुल आश्रम हूँ गंडकी नदी तट प्रदेश रे गंडकी नदी जो प्रवाहित होती तेरे गंडकी नदीर महत्व कौन गंडकी नदी को कहुई सरित स्रष्टा सरित प्रवर बोली कहुई भागवत प्रवर माने श्रेष्ठ सरित माने नदी नदी मान के मध्य श्रेष्ठ बोली कहुई गंडकी कारण गंडकी नदी रे जो शिलामान दृष्टिगत हुअन्ति से शिलामान होउछन्ति सब नारायण शिला भगवान शिला रूप से गंडकी नदी रे आविर्भूत होता तेणु गंडकी नदीर जल भगवान कर नारायण शिला को स्पर्श करी प्रवाहित होउछि तेणु गंडकी नदीर जल से भगवान कर चरणामृत जपरी गंगा भगवान कर चरणामृत तेणु गंडकी नदी रे अनेक शालग्राम शिला दृष्टिगत होता आम जो घर मानकर शालग्राम शिला पूजा करुचे प्रकृत पक्षे से शिला गंडकी नदी आसता एवं शिला मानकर सब चिन्ह मान रही था चक्र चिन्ह एवं विभिन्न प्रकार सब भगवान कर चिन्ह मान रही था तो शिलार नाभि 2टी नाभि रही था गोलाकार एवं अनेक समय चक्र विभिन्न शंख विभिन्न चिन्ह मान शिलार रही था जहाँ को नारायण शिला भाव आमे पूजा करता से शालग्राम शिलांकर केवे प्रतिष्ठा हुए नहीं आमे जेपरी विग्रह प्रतिष्ठा करू मंत्र उच्चारण करी शालग्राम शिलांकर सेपरी प्रतिष्ठा उत्सव हुए अर्थात मंत्र उच्चारण करी आह्वान करा जाए ना प्रतिष्ठा माने विग्रह के मध्य भगवान प्रवेश करने आह्वान करा जाए मंत्र द्वारा सी हूँ प्रतिष्ठा किंतु शालग्राम शिला स्वयं नारायण शिला से आह्वान करने आवश्यक हुए तेणु गंडकी नदी रे एपरी शालग्राम शिला मान सब प्राप्त होता तेणु सेठारे भगवान भक्तवत्सल भगवान निजर भक्त मान को दर्शन प्रदान करता तेणु एपरी स्थान रे भरत महाराज से जाई भगवान कर आराधना करने स्थिर कले तेणु भरत महाराज सेठारे बनरे राज ऐश्वर्य त्याग करी से मृग चर्म परिधान कले
तेणु आम एथर देखिपर जे एते ऐश्वर्य मध्य जो राजा एते वर्ष धरी जीवन निर्वाह करुले से केते त्याग स्वीकार कर अनेक समय देखा जाए आम घर जो कौन से आश्रम को जाऊ सेतेबेले आम घर सुख दे आश्रम खोजी था घरे आम जपरी सुख सुविधा प्राप्त होचे आम आश्रम में ठीक से सुख सुविधा खोजी था कारण आम घर सुख सुविधा बिना आमर आश्रम रहा कष्ट साध्य हो पड़े किंतु प्रकृत पक्षे आम जो गृह त्याग कर जाऊे कौन सी साधुंकर आश्रम रही से आमको साधु भली जीवन यापन करने आवश्यक सी हूँ त्याग तेणु भरत महाराज जदिओ सम्राट थिले राज ऐश्वर्य मध्य बढ़ी आसते किंतु से सब किसी त्याग कर राज पोशाक आदि त्याग कर मृग चर्म परिधान कर एवं त्रिकाल संध्या से गंडकी नदी जल रे स्नान करुले अर्थात त्रिकाल संध्या कहले सकाळ द्विपहर एवं संध्या तीन थर स्नान करुले भरत महाराज एवं बनरू निजे फलमूल पुष्प ये सब संग्रह करुले भगवान पूजा पाई एवं प्रतिदिन भरत महाराज भगवान को भोग अर्पण करवा एवं जहाँ भोग अर्पण करेंगे ताकू ही केवल भोजन करुले फलमूल आदि आहार करुले एपरि भाव भरत महाराज कठिन तपस्या आचरण कले अर्थात खाद्य पेय जहाँ उपलब्ध बनरे ताकू ही ग्रहण करुले एवं वस्त्र भाव मृग चर्म परिधान करुले सज्जा पाई कौन सी तंकर सज्जा जपरी राजप्रसाद से ग्रहण करुले किंतु बनरे भूमि रे वृक्ष तले शयन करुले भूमि तंकर सज्जा होता तेणु एपरि भाव से त्याग आचरण करुले भरत महाराज एवं 24 घंटा भगवान ध्यान रे से समय अतिबाहित करुले तेबे भरत महाराज कहार ध्यान करुले से सब समय रे भगवान नारायण ध्यान करुले कारण जितेबाला आमर खाद्य पेय नियंत्रित हम कौन सी प्रकार आवश्यकता अनुभूत हम वस्त्र आदि आवश्यकता एवं जाने शांतिपूर्वक बसिले जाई ध्यान कर आमे कहीं ध्यान करें ना आमे शांति रे बस पाऊना जेहेतु आमर अनेक अभिलाष रही अनेक इच्छा रही एवं ताकू पूरण करने आम अनेक प्रकार प्रयास करुचे से आम सब समय चिंतित रोचे तेणु भगवान ध्यान करने आम पाखे संभवपर हो पार किंतु भरत महाराज जेहेतु अन्य कौन सी भौतिक अभिलाष नथिला केवल भगवान को संतुष्ट करने से भगवान आराधना करुले
तेणु से समस्त चिंतारू मध्य मुक्त थिले एवं चिंतारू मुक्त थिबा हेतु से शांतिपूर्वक भगवान कर ध्यान कर पारथिले। तेबे से भगवान कर ध्यान करुथिले अनेक समय रे देखा जाए जे कई कई ध्यान करने को जाई कौन सी आलोक बिंदुर ध्यान करते कई कई कौन सी बिंदुर ध्यान करते किंतु भरत महाराज एपरी निर्विशेष ध्यान करुनथिले से भगवान कर रूपर ध्यान करुथिले नारायण रूपर एवं से नारायण रूप किपरि ना हिरण्मय पुरुष अर्थात जहाँ का शरीर ज्योति निर्गत होची तांकर शरीर हिरण्मय स्वर्ण हिरण्मय अर्थात स्वर्ण वर्ण तेणु सूर्यमंडल मध्य जो हिरण्मय पुरुष नारायण से तांकर ध्यान करते आमे प्रतिदिन प्रातः काल रे जेतेबेले सूर्य उदय होचंती सेतेबेले आमे सूर्य को दर्शन करी कौन करुचे तांको प्रणाम करुचे ये होची विधान जे आमे सूर्य को दर्शन करने मात्र आमे प्रणाम करने आवश्यक कहीं ना आमे जदियो भगवान को देखी पारुने किंतु से भगवान नारायण सूर्य रूप में प्रकाशित ही समस्त जगत को आलोकित करुछंती। सूर्य प्रकाशित हेबेनी जपरी रात्रि रे सूर्य प्रकाशित हो नाहंती तेणु रात्रि अंधकार रे भरी जाउची आ से अंधकार को दूरीभूत करने पाई आमको आलोकर व्यवस्था करने को पड़ुची किंबा यदि चंद्र उदय हेले रात्रि अंधकार किछटा दूरीभूत होउची जदि वर्ष वर्ष धरी सूर्य उदय न हेबे तार अर्थ वर्ष वर्ष धरी अंधकार भरी रहिबो जेपरि रात्रि अंधकार आमको किपर लगिबो हमरे जीवन धारण करवा असंभव हो पड़ो से सूर्य आमको आलोक प्रदान कर उत्ताप प्रदान कर आम समस्ते सूर्य निकट में ऋणी सूर्य उदय ना आम चक्षु थाई आम देखिपर अंधकार मध्य तेणु प्रत्येक जीवर कर्तव्य प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य सूर्य को दर्शन मात्र तांको नमस्कार करवा उचित आम से सूर्य नमस्कार करता सूर्यदेव प्रसन्न होता जेपरी आम केतबेले शिवंग मंदिर को जाऊ आम कौन करूँ शिवलिंग रे जलदान कर कारण शिव होचंती जलाधार प्रिय जलाधार प्रिय शिव शिव होचंती जल आधार प्रिय केवल जलाधार जल ढाली देले शिवलिंग रे शिवजी संतुष्ट ठीक से परी नमस्कार प्रिय भानु भानु माने सूर्य तेणु सूर्यदेव से नमस्कार प्रिय आउ किसी कर आवश्यक नहीं अतिक्रम सूर्य नमस्कार कौन स्थान रे जेकोसी समय रे सूर्य को देखा मात्र आम नमस्कार करवा आवश्यक आदि सूर्य को जल दे पारे आहरी भल किंतु अतिक्रम नमस्कार करवा आवश्यक अलंकार प्रिय विष्णु आ भगवान विष्णु से होचंती अलंकार प्रिय
तेणु भगवान विग्रह को आमे जिते सुंदर भाव में सजेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते। एवं ता सहित ब्राह्मण भोजन प्रिय आ जो ब्राह्मण से माने भोजन रे संतुष्ट होता ब्राह्मण मान। तेणु आमर प्रत्येक व्रत अनुष्ठान रे तार शेष में ब्राह्मण भोजन व्यवस्था रही। कहीं ना जो माने प्रकृत ब्राह्मण से माने होचंती भगवान मुख सदृश। जेपरि आमर यज्ञ अनुष्ठान करुचे यज्ञ आहुति दौचे तेणु भगवान दुईटी मुख रही। गोटे हूँ अग्नि मुखरे भगवान ग्रहण करती भोजन एवं ब्राह्मण मुखरे भगवान मध्य भोजन ग्रहण करता। से प्रति व्रत अनुष्ठान शेष में ब्राह्मण भोजन प्रदान कराए भगवान विष्णु को संतुष्ट करने। तबे महाराज भरत से सूर्यदेव मध्य जो भगवान नारायण रही आमे गायत्री मंत्र उच्चारण करुचे ब्रह्म गायत्री से आमे सूर्य नारायण उपासना करुचे द्वारा। ठीक से परी ऋग्वेद वर्णना रही सवितृ मंडल मध्यवर्ती ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासीन निविष्ट। सबु समय ध्येय ध्यान करने योग्य कहार तो सवितृ मंडल सूर्य मंडल मध्य नारायण जे कि पद्मासन रे उपविष्ट होती से नारायण ध्यान करने आवश्यक। तेणु महाराज भरत गायत्री मंत्र उच्चारण करी ओम भूर्भुव जो रही मंत्र से नारायण ध्यान करुले सवितृ मंडल मध्य। तेणु ब्रह्म गायत्री ये हूँ ध्यान सूर्यमंडल मध्य भगवान नारायण ध्यान कर जो नारायण बक्ष देश शिवस्थ चिन्ह रही गल देश कौस्तुभ एवं हिरण्मय वर्ण एवं गलारे पुष्पमाला धारण कर सेपरी नारायण मस्तक मुकुट कर्णरे कुंडल एपरी नारायण मूर्ति ध्यान कर सूर्यमंडल मध्य। तेणु भरत महाराज एपरी भाव में भगवान नारायण ध्यान करते एवं ध्यान करने सहित भगवान आराधना रे से एते निमग्न हो जाते भरत महाराज जे तांकर आउ कौनसी प्रकार भौतिक आसक्ति नथिला। तांकर हृदय पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता एवं विशुद्ध हृदय रे से भगवान का ध्यान करती तांकर हृदय द्रवीभूत हो जाए चक्षुर लोतकर धारा प्रवाहित हुए शरीर रे रोमांच उत्पन्न हुए एवं शरीर कंपित हवा को आरंभ करे। तेणु एपरी स्थिति को प्राप्त ही भरत महाराज
अत्यंत दिव्य आनंद को प्राप्त होता, कारण ये थिला भावर स्तर। तो भगवत प्रेम प्राप्त करिवार ये होची पूर्व स्तर भाव, तापर प्रेम। तेणु भरत महाराज एपरी स्थिति को प्राप्त ही से बनरे दिव्य आनंद रे विचरण करथिले। दिने भरत महाराज प्रातः काल रे स्नान एवं स्नान आदि तंकर प्रातः कर्म समापन करी से गंडकी नदी तटरे उपवेशन करछन्ते एवं निजर गायत्री मंत्र जप करछन्ते, नारायण कर ध्यान करछन्ते। एवं जेतेबेले तांकर मंत्र जप शेष होईछि सेतेबेले से देखिले जे गोटे मृगुणी से नदी तट को आसी जलपान करने। एवं जलपान जितेबाला से आनंद रे जलपान करुच्ची मृगुणी, सेतेबाला हठात निकटरू सिंहर गर्जन सुनागला। और बनरे सिंह गर्जन श्रवण कले साधारण भाव में सबु पशुपक्षी भयभीत होता है। आ साधारण भाव में मृग माने से अधिक भयभीत। तेबे ये मृगुणी जितेबाला निकटरे सिंह गर्जन श्रवण कला कि भयंकर गर्जन थिला, से अत्यंत भयभीत है। जदिओ से जलपान करुला आनंद रे एवं से संतुष्ट है जलपान करिवारे, से समय रे सिंहनाद सुनागला, सिंह गर्जन। से चतुर्दिग को लक्ष्य करी भयभीत अवस्था रे से कौन करिवो किछि स्थिर करि न पारी निजर जीवन बंचेबा को जाई से मृगुणी से नदी ऊपर लम प्रदान कला आरपट को जीवापे। एवं से मृगुणी गर्भवती थिला। तेणु जो अत्यंत भयभीत अवस्था रे मृगुणी लम प्रदान करिछि नदीर अपर पार्श्व को जीवापाई, सेतेबेले तार गर्भरू गोटे मृग शिशु बाहरी आसला, तार गर्भपात। किंतु शिशुटी अतिक्रम तार पूर्ण शरीर को प्राप्त होता। तेणु से शिशुटी जितेबाला बाहरी आसला मृगुणीर गर्भरू से आसी से जल रे पड़ला। मृगुणी आरपट को चली जाइछि एवं आरपट को पहुंचा पर मृगुणी जितेबाला देखी तार सांगसाथी मैंने सब पछरे रहीगले एवं तार शिशु जहाँ से गर्भरे धारण करथिला से जल रे पतित होगला। तेणु एपरी अवस्था से मृगुणी आरपटे गोटे गुफा भितर पड़ी से प्राण त्याग गला। भरत महाराज ये दृश्य देखुं जे किपरि भाव ये गर्भवती मृगुणी शिशु को जन्म देवा परे परे निजे प्राण त्याग करुच्ची एवं तार शिशुटी नदी जल रे भासी जाउछि। तेणु भरत महाराज जे कि सम्राट थिले भारतवर्षर आउ भगवान कर परम भक्त, तांका हृदय रे दया उत्पन्न हवा स्वाभाविक।
विशेष भाव में जो माने भक्त से हृदय करुणार भरी रही है। आ जने शासक से मध्य प्रजावत्सल से कहार कई असुविधा प्रजा पड़ी से माने देखिपारे तार समाधान करने से माने चेष्टा करेंगे। तेणु भारत महाराज प्रथमे थिले सम्राट एवं भगवान परम भक्त तेणु तांकर हृदय रे करुणा उत्पन्न हवा स्वाभाविक थिला। तेणु भारत महाराज संगे संगे उठी जाई जो मृग शिशुटी नदी जल रे भासी जाउथला भारत महाराज से शिशुटी को उठे आनले कारण से जानी जे शिशुर मध्य अल्प समय पर मृत्यु हम सद्यजात मृग शिशु से जल रे अधिक समय रही पार तेणु तार प्राण रक्षा करने से ताकू उठे आनले उठे आनिबा पर वर्तमान भरत महाराज चिंता कले जे वर्तमान ये मृग शिशुटी जन्म हवा मात्र तार माता को हरेला तार रक्षणाबेक्षण करने आउ कहीं नहांती तेणु मु जितेबाला रक्षा कली तेणु यार पालन करने मोर धर्म। तेणु एपरी चिंता करी भारत महाराज से मृग शिशुटी को निज आश्रम को नहीं आसिले एवं आश्रम को नहीं आसी मृग शिशुटीर लालन पालन दायित्व बहन कले। मृग शिशु को घास आनी खाइबा को दबा एवं ताकू स्नेह रे आलिंगन करवा कौन सी बाघ भालू बा अन्य वन्य प्राणी जेपरी मृग शिशु पर आक्रमण न करती से ताकू सुरक्षा प्रदान करवा ये सब कार्य भरत महाराज करने को आरंभ कले जहा फल से जो भगवान कर आराधना करने राज्य त्याग कर आसते निजर परिवार त्याग कर आसते से सब को धीरे धीरे से अवहेला प्रदर्शन कले। अनेक समय ठाकुर पूजा करुवा समय जदि मृग शिशुटी निकट में नथिबो ताहले भारत महाराज उत्कंठित ही उठंती एवं उत्कंठित ही मृग शिशु कुआडे गला से पूजा छाड़ी खोजिया को जीवे। बेले बेले जदि मृग शिशु कौन सी कारण आश्रम रे नहीं ताहले से अत्यंत चिंतित ही पड़े जैसे मृग शिशु की कौन सी वन्य प्राणी भक्षण कला ना कौन कला तांके मन रे अनेक चिंता आसी जाए। जेपरी आमर घरे कौन सी व्यक्ति जदि बाहर को जाइछंती अनेक समय धरी फेरिले अनेक विलंब है आम सब केते कथा चिंता करथाउ जे कौन असुविधा है कौन एक्सीडेंट हो गला बा अन्य किसी है केते प्रकार चिंता सब मन को आसता है। ठीक सेहीपरि भरत महाराजंकर मृग शिशु प्रति मध्य चिंता सब आसवा को लगला जेहेतु से मृग शिशु प्रति आसक्त हो पड़ते एवं भावुले जे मुझे ये मृग शिशुर पालन न करी ताहले ये मृग शिशु को पालन करने आउ कहीं नहांती ए मृग शिशु मोर शरणागत हो मो बिना अन्य क्या जानी तेणु शरणागतर रक्षा करने मोर कर्तव्य एपरी चिंता करी भरत महाराज
से मृग शिशुर लालन पालन में समय अतिबाहित कले एवं निजर भक्तिमूलक जो साधना भगवत आराधना ताको अवहेला प्रदर्शन करने को लगे जहा फल धीरे धीरे तांकर भगवत आराधना अवहेलित होगा लगला एवं मृग शिशु प्रति तांकर आसक्ति वृद्धि प्राप्त होगा लगला। एपरी किछि समय व्यतीत हवा पर जेतेबेले भरत महाराज शेष समय आसला सेतेबेले से मृग शिशुटी तांका निकट में बसी था तेणु भरत महाराज भावुता वर्तमान मु शरीर त्याग कले मृग शिशुर अवस्था कौन हम ए मृग शिशुटी केते दुखित ही बसी मो निकट में मु शरीर त्याग कले से पुणी एकाकी हो तेणु से मृग शिशुर कथा चिंता करी करी भरत महाराज प्राण त्याग कले। तेणु भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते जं जं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतं एवेति कौन्तेय तद्भाव सदा तद्भाव भावित। जे मृत्यु समय रे जे जहा चिंता करी शरीर त्याग करिवो से मृत्यु पर से परि भाव को प्राप्त हो। अनेक समय आम देखू जे कौन सी व्यक्ति मृत्यु शज्या पड़ी तार पिला माने पाखरे नाहंती जेहेतु से पिला मान के प्रति आसक्त से कहूँ जे मोर पिला मान को टिके डाके दियो मु देखी तेणु से पिला मान को देखा चाहूँ तार अर्थ से पिला मान के प्रति आसक्त से भगवान मन पड़ूना तार मृत्यु समय रे तेणु परजन्म से घरे ओडस ही जन्म हम ना कुकुर ही जन्म ग्रहण कर किसी घर प्रति जेहेतु आसक्त तेबे भगवान कृष्ण कहते जे मृत्यु समय रे जे मुक्त स्मरण करिवो अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त कलेवरम ज प्रयाति समद्भावं जाति नास्त्रत संशय। जे मृत्यु समय जे मुक्त स्मरण करिवो से मत प्राप्त हो मोर धाम को प्राप्त हो। आमे जदि घर लोक को स्मरण करिवा ताहले आमे पुणी से घरे आ मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं पशु पक्षी कीट पतंग जन्य लाभ करी से घरे आसी रहिबा। तेणु आम मृत्यु समय रे कौन स्मरण करुचे क्या स्मरण करुचे कौन चिंता करुचे से अनुसार आमर परवर्ती जन्म हो। से ये बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण जे आमर जीवन को आम एपरी गढ़ा आवश्यक जे अति कम आम मृत्यु समय रे जेपरी भगवान कृष्ण को स्मरण करी शरीर त्याग करि परियो ता नहले भरत महाराज के परि आमर अवस्था हो। तेणु भरत महाराज के चरित्र ये आम एक शिक्षणीय चरित्र जे जड़े भक्ति मार्ग रे एते अग्रगति करी भावस्तर पर्यंत पहुंची जाई मध्य तांकर केमती पतन हो गला ये मृग शिशु प्रति आसक्त होता। तेणु भौतिक आसक्ति आमको भक्ति मार्गर उन्नत शिखर अति सहजरे तलू नहीं आस आम जदि से प्रति सचेतन न होगा। आमे
सब समय निजर साधना भगवत आराधना से कौन से प्रकार अवहेला प्रदर्शन करवा उचित न। आमे यदि भौतिक आसक्ति पाई निजर साधना भगवत आराधना प्रति अवहेला प्रदर्शन करू ताहले आमर भरत महाराज परी अवस्था हो तांकर जहाँ परवर्ती अवस्था आमर आध्यात्मिक मार्ग रे पतन हम आम जदि अवहेला प्रदर्शन करूँ निजर नीति नियम प्रति आमर जपरी चारोटी नियम पालन करिवार रही प्रतिदिन भगवान कर नाम जप करिवार रही भगवान कर कथा श्रवण करवा शास्त्र अध्ययन करवा भगवान कर सेवा करवा भगवान कर आराधना करवा ये सब आमर नित्य कर्म से प्रति आम अवहेला प्रदर्शन कले आमर पतन हवा स्वाभाविक। तेणु सामान्य भौतिक आसक्ति भरत महाराज को एत उन्नत स्तर पतित करदेला। तेणु भगवान कार्य केतेबेले हेले कौन सी भौतिक आसक्ति हेतु अवहेला प्रदर्शन करवा उचित न। आमे संसार रही ठीक अच्छे आमर परिवार प्रति कर्तव्य रही आमे अर्थ उपार्जन करुचे ठीक अच्छे ताकू कहीं मना करना किंतु आमे ताकू कर्तव्य ज्ञान रे करवा आसक्त हवानी कारण से आम जीवन लक्ष्य न। आम जीवन लक्ष्य भगवान को आम किपरि प्राप्त ही संसार कष्ट रु सबुदिन मुक्त हवा भगवान कर सेवार आम नियुक्त हवा नित्य सेवार नित्य आनंद रे रहा से हूँ आम जीवन लक्ष्य। तेणु आम कर्तव्य दृष्टि कर्तव्य संपादन करवा किंतु कौन सी भौतिक वस्तु बा व्यक्ति प्रति आसक्त हवा एथुर आम यही शिक्षा प्राप्त हो। तेणु भरत महाराज मृत्यु समय रे से मृगर चिंता कले मृग शिशुर चिंता कले जो भरत महाराज भगवान कर आराधना पाई राज्य त्याग करदे परिवार को त्याग कले पुत्र कन्या पत्नी समस्त को त्याग कर एते तांकर आसक्ति उत्पन्न होता भगवान कर सेवा प्रति उत्तम श्लोक लालस किंतु सामान्य मृग शिशुर आसक्ति हेतु मृत्यु समय तारी चिंता करी शेष मृत्यु पर से गोटे मृग जन्म प्राप्त है भरत महाराज जेहेतु से मृगर चिंता करते से समय तेणु भरत महाराज मृग जन्म जिते प्राप्त हेले सेतेबेले भगवान तांके प्रति टी कृपा रही जेहेतु से एत बड़ सब त्याग स्वीकार करते तेणु से पूर्व जन्मर कथा मन रखी मन पकई पारुले साधारण भाव में आम पर जन्म ए जन्मर कथा मन पकई पारानी आम या पूर्व केते जन्म नहींचे आमर मन नहीं आम कौन थे कौन करुले किंतु जेहेतु भरत महाराज एत बड़ त्याग स्वीकार कर भगवान आराधना करते किंतु सामान्य भूल पाई से मृग शरीर प्राप्त होती तेणु भगवान तांके प्रति कृपा करी तांको पूर्व जन्मर वृत्तांत सब मन पकई देथिले तेणु से मन रखिले सब पूर्व जन्म से कौन थे आ ए जन्म कहीं मृग जन्म प्राप्त है जहा फल भरत महाराज वर्तमान सतर्क हो गला से भाविला आउ से भूल मु करी
गोटे जन्म साधारण मृग प्रति आसक्त ही बर्तमान मृग शरीर लाभ करिछि। मु एते बड़ पद को त्याग करी भगवान कर आराधना करी भगवान धाम को प्राप्त होगापी किंतु ता बदल बर्तमान मत मृग जोनि प्राप्त है। तेणु भरत महाराज मृग जन्म जेहेतु पूर्वजन्म वृत्तांत मन थिला तेणु से माता मृग माता को त्याग करी कारण मृग मेल रहिले भली आचरण करने को पड़ो। आम जहाँ मेल रहा से भली आचरण आमर हम तेणु से मृग मेल जदि रही था मृग भली आचरण करते किंतु भरत महाराज मृग मानकर मेल त्याग करी से पुल आश्रम जोठी से रही से आश्रम रे आसिक रहा आरंभ कर जोठी साधु माने भगवान कर आराधना करुछंती तेणु से माने भगवान कर कथा कीर्तन करुछंती नाम कीर्तन करुछंती तेणु भरत महाराज मृग जनी रे से भगवान कर कथा श्रवण करुଥିଲେ भगवान कर नाम कीर्तन श्रवण करुଥିଲେ एवं साधु माने जो माने भगवत भक्त भगवान को भोग लगे जहाँ प्रसाद से प्रसाद मध्य प्राप्त होते भरत महाराज मृगजनी रे गंडकी नदीर जलपान करथिले। एपरि भाव से तांकर मृग जन्म को व्यतीत कले। एवं मृग जन्म एपरि व्यतीत करी तांकर जेतेबेले मृत्यु है परवर्ती जन्म तांकर मुक्ति हलानी मृग जन्म तांको आउ थरे पुणी जन्म नाकू पड़ला किंतु एथर से गोटे ब्राह्मण परिवार जन्म नेला जेपरि भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते शुचिनां श्रीमतांगे जोग भ्रष्ट विजायते जे जोग मार्ग भ्रष्ट हो पतित हो से कौन सी शुद्ध ब्राह्मण कूल जन्म ग्रहण करिवो किंबा श्रीमताम धनी व्यक्तिर परिवार जन्म ग्रहण कर अर्थात जदि आम भक्तिर अभ्यास करुचे भगवान कर ए जन्म रे आमर पूर्ण हो पारानी भक्ति ताहले पर जन्म रे यही भक्ति बल आम कौन सी ब्राह्मण परिवार रे बा धनी लोकर परिवार रे जन्म ग्रहण करिया आमर जो भक्ति आम ए जन्म रे जोठी छाड़ीचे पर जन्म रे आम सेठू आरंभ करी ताकू संपूर्ण करिया सेथिपई आमको गोटे सुजोग प्राप्त तेणु भरत महाराज को से सुजोग प्राप्त है से तांकर भक्ति जो रही जाइथिला मृग प्रति आसक्त होइथिबा हेतु तांको आउ गोटे ब्राह्मण कूल जन्म प्रदान करागला से भक्ति को से पूर्ण करने पाए। तेबे से ब्राह्मण कूल भरत महाराज जितेबाला जन्म ग्रहण कले तापर तांकर कार्यावली कौन है आम आगामी काली श्रवण करिया। हरे कृष्ण।